वंदे मातरम। दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजय खान। सूरत में लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति के धीरे धीरे गर्माते आसार नजर आने लगे। जनता के बीच वोट मांगने जाने से पहले मोदी सरकार ने हर तरह की तैयारी की। सरकार ने लोकसभा के श्वेत पत्र पेश कर एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किए श्वेत पत्र 2004 से 2014 तक के यूपीए शासनकाल के दौरान देश की स्थिति जो निराशाजनक थी। श्वेत पत्र देश में बैंकों की स्थिति पर विस्तार से बताता है। जिस तरह से देश कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, जीडीपी भी कम थी, साथ ही लोगों की आमदनी की आय कम थी। दिशाहीन यूपीए सरकार के शासन के कारण देश के आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। एनडीए सरकार ने धीरे धीरे देश की ऐसी स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश कर रही। देश के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया काम। प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने जब मोदी सरकार सत्ता में आई, उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार ने बहुत ही कड़े कड़े फैसले लेकर देश की स्थिति को संभाला और देश में कई उम्मीदें जगी। देश जहां आर्थिक मोर्चे पर पिछड़ रहा था, अब वहीं लगातार आगे बढ़ रहा है। देश में बैंकों की हालत में सुधार आ रहा है। कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी देश मजबूती से खड़ा रहा है। तब से देश लगातार सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। लोगों को मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। सांसद दर्शना जरदोश ने कहा कि मोदी सरकार की गारंटी आज सरकार खरी उतर रही है। न केवल गुजरात बल्कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में भी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता को मोदी पर अटूट विश्वास है। उन्होंने कहा कि योजना की घोषणाएं जो करती है वो करती है, लेकिन राम मंदिर निर्माण की गारंटी, धारा 370 हटाने की गारंटी के साथ साथ उन्होंने और कई भी वादे पूरे किए। चाहे रेलवे कॉरिडोर की बात हो, चाहे देश के अलग अलग हाईवे की बात हो, मोदी सरकार सभी क्षेत्रों में तेजी से काम कर रही है और आगे भी निरंतर प्रयास जारी रहेगा। આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ અને એની સાથે સુરત નવસારી અમે બંને સાંસદશ્રીઓ જે સામાન્ય રીતે લોકસભાનું જે અંતરિમ બજેટ આવ્યા પછી આપ સૌને મળતા પણ હોઈએ છે અને રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પછી સરકાર એના જે વિઝન લઈને પ્રજાની વચ્ચે જતી હોય છે એની કેટલીક માહિતી આપ સાથે શેર કરવા માટે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જે પોલિટિકલ ક્રીમ કહેવાય સુરત શહેરનું જે અધ્યક્ષથી માંડીને સંગઠન અને સૌ મંત્રીશ્રીઓ અને આપ સર્વને જે છેલ્લા 15 વર્ષની અમારી સફર તેમાં તમારા સૌનો સાથ સહકાર ખૂબ રહ્યો અને હજુ પણ એ શરૂઆત અને આવનારા વર્ષોની અંદર આપણે જે અમે કર્તવ્યકાળના સંકલ્પ સાથે આગળ ચાલી રહ્યા છે કે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીજી મોદી ગેરંટી 3O એટલે કે હેટ્રિક સાથે જ્યારે નવી સરકારની અંદર આગળ વધવાના છે અને એમણે કરેલા કામો ખાસ કરીને રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણના મુદ્દાઓ આપ સુધી પહોંચી ચૂક્યા છે અને એને જ આધારે જ્યારે અંતરિમ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું ત્યારે એની અંદર આપ સર્વને માહિતી આપવા અમને ખૂબ આનંદ થાય છે કે મોદી ગેરંટીની વિકસિત ભારતની સંકલ્પ યાત્રાની સફળતા પછી સરકારના વિવિધ મંત્રાલયો અને અંતરિમ બજેટની અંદર પણ ફક્ત 4 મુખ્ય ધ્યેયને હાથમાં લઈને ગરીબો, મહિલાઓ, યુવાઓ અને કિસાનો આની આધારિત લોકોની યોજનાઓ અને એની આજુબાજુ સરકારના દરેક મંત્રાલયો એક ઇકોસિસ્ટમથી કામ કરી રહ્યા છે। સાથે સાથે વિકસિત ભારત જે 2047ની અંદર વિશ્વગુરુ બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, તો ત્યારે જે ઇકોનોમીની વાત કરીએ કે આપણે જ્યારે કોંગ્રેસની સરકાર પાસેથી 2014ની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીનું અને 300ની ઉપરની બહુમતી સાથેની સરકાર બની એનડીએની, તે વખતે 11મા નંબર ઉપર જે આર્થિક પ્રગતિ સાથે જે ભારત પોતાનું યોગદાન આપી રહ્યું હતું એને 5મા નંબર પર લઈ જવાનું જે એક ભગીરથ કાર્ય જે સરકારની વિવિધ યોજનાઓ થકી કરી તે ખૂબ અભિનંદનને પાત્ર છે। અને ત્યાર પછી આવનારા વર્ષની અંદર એટલે કે હવે ત્રીજી સરકારની અંદર આ ઇકોનોમીને 3જા નંબર પર લઈ જવા માટે સરકારે કેટલાક વ્યવસ્થિત આયોજનો કર્યા છે જેના પરિણામો લોકોએ જાતે અનુભવ કર્યા છે। ખાસ કરીને આ વચગાળાનું બજેટ જ્યારે હોય તો 23 વર્ષ જ્યારે ભારતની આઝાદી શતાબ્દી ઉજવશે ત્યારે સબકા સાથ સબકા વિકાસની સાથે એમણે જે વિચાર કર્યો છે એમાં આધુનિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, પ્રકૃતિ અને બધાને સમાન તકો મળે એના માટે કામ કરવાનું નક્કી કર્યું છે। यूपीए सरकार के 2004 से 2014 तक के
उनके शासन के अंदर जो स्थिति थी आर्थिक व्यवस्था, उसके बारे में हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण जी ने एक श्वेत पत्र का लोकसभा में रजू किया था। उसके अंदर 10 साल के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था कमजोर हुई थी, तो रुपये का भाव कम हो गया था, बैंकिंग सेक्टर और संकट में आ गया था, विदेशी मुद्रा का भंडार वो कम हो गया था, बहुत बड़ा लोन और लिया गया था यूपीए सरकार में, राजस्व का खोटा दुरुपयोग हुआ था। श्वेत पत्र अनुसार यूपीए सरकार के आर्थिक गतिविधियों की सुविधाजन्य बनाने में वो निष्फल रही थी और उसकी जगह पर यूपीए सरकार ने मुश्किलें पैदा कर दी थी। जो अर्थव्यवस्था शांत होने लगी थी, उसको वाजपेयी जी के नेतृत्व की जो एनडीए सरकार थी, उन्होंने जो डेवलपमेंट किया था, उसका विलंबित प्रभाव और अनुकूल वैश्विक परिस्थिति का भी उनको लाभ मिलने के बावजूद इतनी खराब स्थिति हुई थी। उच्च राजकीय नुकसान, बड़े खाता का 5 वर्षों में 2 अंकों की महंगाई, ऐसी स्थिति यहाँ पर सृजन हुई थी। भारतीय जनमानस के ऊपर उसकी बहुत बड़ी नेगेटिव इफेक्ट हुई थी, उनके पॉकेट के ऊपर उसके वजह से नुकसान भी हुआ था। कांग्रेस सरकार में जो हाईवे बनाने की स्थिति थी, वो रोज की सिर्फ 12 किलोमीटर बन रही थी। मोदी सरकार के समय में 28.3 किलोमीटर प्रतिदिन बनाना शुरू हुआ है और अभी तक 2014 में मोदी साहब ने जवाबदारी संभाली, 2015 से 2023 दिसंबर तक 54.9 हज़ार किलोमीटर ये रोड हाईवे का निर्माण यहाँ हुआ है। जो मेडिकल कॉलेज की संख्या 51,348 थी, वो अभी डबल हो गई है। 2014 तक मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी और 706 हो गई थी। सीट तो बढ़ी, मेडिकल कॉलेज भी बढ़ी। कांग्रेस सरकार दरमियान ग्रामीण विस्तारों में बिजली की जो सुविधा थी, जो लाइट की सुविधा थी, वो सिर्फ 12 घंटे थी। अभी मोदी साहब के समय में 20 घंटा गांव में, ग्रामीण विस्तार में भी ये पावर दिया जा रहा है। कांग्रेस के साथ अगर हम उसको देखते हैं तो एनडीए सरकार में 2005 से 2014 तक 25.5 हज़ार किलोमीटर मार्ग का तो निर्माण हुआ था, जो हमने बताया कि वो अभी 54.9 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का हुआ है। कांग्रेस सरकार में 2014 तक जो बीज उत्पादन 85। आगे की जानकारी के लिए बने रहे, देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।